Hi guys, good morning and अस्सलाम वालेकुम. Welcome back to my YouTube channel. As we all know that कि आज हमारा थर्ड डे है रीडिंग द न्यूज़पेपर. सो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हम छोटे छोटे आर्टिकल्स लेंगे जिससे हम सीखेंगे कि पहले कैसे पढ़ा जाता है. तो ठीक है. सो टुडे इज़ आवर थर्ड डे. आज हमारा तीसरा दिन है जहाँ पे हम ये वाली न्यूज़ जो देख रहे हो अब यहाँ से ये देखो, ये हम न्यूज़ आज पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. और मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि स्मॉल स्टेप्स मेक अ वेरी बिग डिफरेंस. ओके, ये मत सोचो कि हम लोग बड़ा करेंगे तब भी मतलब एकदम से बड़ा ही करेंगे. ठीक है, पहले हम लोगों को वी हैव टू गो फ्रॉम द स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू रीड. Okay, then we will understand that how it's like work. Okay, so today I have chosen this news which is it's like an interview. As you can see here, I'll show you. This is like an interview. This is an interview of Kodi Kunil Suresh, Congress MP. Okay, the heading of this is: ruling party is breaking the convention of the house. Here ruling party is nothing but who is having the power to rule the government. Okay, as we all know that in today's date we have the BJP as a ruling party. Okay, as it is saying that is a breaking the convention of the house. Convention is nothing but the meeting, like being together or gathering or to the an agreement, making an agreement. If you want to make an agreement, then you have to sit in a circle or you have to have the meeting for the agreement. Okay, for this they have made ruling party is breaking. रूलिंग पार्टी पहले इन्होंने एक रूल बनाया है जो आप तोड़ रहे हैं, मतलब ना ब्रेकिंग द कन्वेंशन ऑफ द हाउस. ओके, चलो देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी दिस न्यू दिल्ली. कांग्रेस लीडर कोडी कुनिल सुरेश and the 8-term lawmaker fielded as an Indian bloc's candidates for the speaker position against the BJP ओम बिरला. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ही इज़ अ लॉ मेकर हु कोडिकुनिल सुरेश. ओके, इन्होंने इंडिया फाइल मतलब किसी भी चीज़ को आगे रखना एज ए इंडियाज ब्लॉक्स कैंडिडेट्स फॉर द स्पीकर पोजीशन अगेंस्ट द बीजेपी ओम बिरला अक्यूज द रोलिंग NDA of the breaking the convention of the giving the deputy speaker position to the opposition. They are filing this case for the what of giving the deputy speaker position to the opposite party. For that reason they have filed the case. Let's see what they have the thought and why they have filed this case and what they have the thinking about it. So it is like an interview, as we have the questions 1 2 3 4 5 questions. 5 questions we have. This interview conducted by the Subhadra Chatterjee. He is a reporter. Okay, he asked the questions to whom? To Kodikunal Suresh. Okay, let's see what was the questions. The first question was, why did you decided to contest? Okay. The India bloc parties have decided to contest because the ruling party is breaking the convention of the house. Historically, the speaker has been from the ruling party and the deputy speaker from the opposition. This tradition was followed during the Narsimha Rao and the Manmohan Singh government and even during VP Singh's time. We upheld it every time. Okay, so here in this paragraph they are telling that why they have decided like to fight against this against this case. They are telling India Bloc Party has decided, जो opposited party है, bloc parties is nothing but guys who is like non-ruling party. If we in our government we can see one is a ruling party, one is the opposite party who is not non-ruling party. Okay, this party have decided कि contest because ruling party उन्होंने डिसाइड किया है, जो नॉन रूलिंग पार्टी ने, क्योंकि रूलिंग पार्टी ने यह रूल तोड़ दिया है कि ये कौन सा रूल तोड़ा है कि उनको डेप्यूटी पोजीशन स्पीकर
पोजीशन नहीं दिया, डिप्यूटी स्पीकर की पोजीशन नहीं दिया, क्योंकि सी हियर ये बोलना चाह रहे हैं कि हिस्टोरिकली ये एक इतिहास है कि स्पीकर हैज़ बीन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी से होता है, जो हु इज़ a ruling party means if you have like BJP nowadays, no, they are going to give the speaker position to ruling party, ठीक है, and the deputy speaker from the opposition, the tradition was followed, and deputy speaker किसको दिया जाता है? अपोजिशन पार्टी, जो भी अपोजिट पार्टी हो उसको डेप्यूटी स्पीकर दिया जाता है, और जो रूलिंग पार्टी होती है उसको स्पीकर दिया जाता है. So this tradition was followed during the Narasimha Rao and Manmohan Singh government, and even during VP Singh's time we upheld it every time. ठीक है, ये जो रूल है कि स्पीकर पार्टी इसको दिया जाता है एंड डिप्यूटी स्पीकर इसको दिया जाता है, ये रूल एक ट्रेडिशन है, एक पहले से चलता हुआ एक रूल है, जो लाइक नरसिम्हा राव जब थे उनके टाइम में भी यही रूल था, मनमोहन सिंह थे उनके टाइम में भी यही रूल था, इवन द वीपी सिंह टाइम में भी यही रूल था. आज देखिए यही रूल होता है कि स्पीकर रूलिंग पार्टी होता है एंड द डिप्यूटी स्पीकर नॉन रूलिंग पार्टी को दी जाती है. तो ये बात कौन बोल रहा है? ये कोडिकुनिल सुरेश साहब बोल रहे हैं जब रिपोर्टर ने ये क्वेश्चन पूछा. लेट्स सी आगे क्या बोलता है. ओके, इन 2014 when Modi came to the power our member were between 40 and 48. 2014 में बीजेपी पार्टी जब पहली बार रूलिंग पार्टी मतलब पावर में आई थी, उस टाइम में मतलब इनके अपोजिट पार्टी वालों का नंबर था 40 से 48 था. एंड दे सेड वी वर नॉट एलिजिबल फॉर द लीडर, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे सीट्स कम हैं एंड आप इसके काबिल नहीं हो कि आप लीडर बन जाओगे. ठीक है, दिस दे आर सेइंग. एंड ऑल्सो वी एग्रीड, और हमने मान भी लिया. इन 2019 आवर नंबर्स वर 52. लेकिन 2019 में जब 5 साल 2014 से 2019 तक 5 साल हो गया, जब बीस से इलेक्शन जीता गया, उस टाइम हमारा था 52, बट द रिक्वायरमेंट वाज 56. बट उनकी रिक्वायरमेंट मतलब क्राइटेरिया था 56 का, बट वी हैड 52. हमारे पास 52 थे, हम 4 सीट से पीछे थे. ठीक है, फ्रॉम 2014 टू 2019 द डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट वॉज गिवन टू 2014 से 2019 तक जो डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट था वो AIADMK को दिया गया था, एंड आउटसाइड सपोर्टिंग पार्टी. दिस टाइम वी आर एलिजिबल. तब तो उन्होंने 2014 से 2019 में स्पीकर पोजीशन, डेप्यूटी स्पीकर पोजीशन इनको दिया था जो AIADMK थे. ठीक है, और उनका सपोर्ट ये था. बट इस टाइम हम लोग हर एक चीज़ को मतलब लिमिट पहुंच रहे हैं. जैसे क्राइटेरिया जो भी है, इतने मेंबर्स होने थे, इतने सीट होते, जो भी रूल्स थे, हम एम एलिजिबल है, हम इस बार इस काबिल है कि हमारे पास सीट्स है, मेंबर्स है, सब कुछ है. ठीक है, उन्होंने ये जवाब दिया जब इन्होंने ये रिपोर्टर ने पूछा कि व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट, क्यों आप इसके खिलाफ लड़ना चाह रहे हो. ठीक है, ओके. द सेकेंड क्वेश्चन जो रिपोर्टर ने पूछा था, दिस वॉज लाइक when did the government tell you that an opposition won't get the deputy speaker post. यहाँ पे पूछा जा रहा है, एज आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि जब भी WH क्वेश्चन आता है वहाँ ऑलवेज दैट इज एन क्वेश्चन. ओके,